by waiting for people. Anyway, let's. So I think last time we have seen. किसी को कुछ क्वेश्चन है? लास्ट टाइम we ended with the service account and again we were on the navigation, so we need to move from the navigation and anybody has any question? File command is what we were looking into, and yes, Lubna. Hi, sir. Sir, as you told, Linux का और इसका Windows का same commands रहते हैं ना, but actually it is not working as same as Linux. I practiced through the week. I never said they are same. I mean, what I was saying again and again, they are different. What I said, the Unix, like the POSIX, will have the same command. So any, if you have any operating system that is POSIX compliant, I say this again and again because this is very important that everyone should know. If any operating system is POSIX compliant, they will have the same command. I never said Windows is a POSIX compliant operating system. So the command जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, that doesn't guarantee it will work there as well. What Windows people have done now on the PowerShell, उन लोगों ने alias बना के रखा है. Like because people are used to using ls command to list to see what is there in the directory. तो विंडोज में जो विंडोज का कमांड अलग है पावरशेल का, तो वो लोगों ने क्या कर रखा है, एलियस बना के रखा हुआ है. तो विंडोज में अगर मुझे सेम एलएस कमांड चलाना है, इफ आई वांट टू विंडोज, व्हेन आई टॉक अबाउट विंडोज आई विल बी जनरली टॉकिंग अबाउट पावरशेल, ठीक है. तो विंडोज में अगर किसी को डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है तो दिस इज द कमांड गेट चाइल्ड आइटम, और वहां पर वो लोगों ने क्या कर रखा है, इसका एलियस बना के रखा है ऐसा, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू रनिंग एलएस टू डू द लिस्ट, जो कि सेम काम करने वाला. तो you can on PowerShell you can run these few commands, but that doesn't mean कि this is POSIX compliant, ठीक है. तो Windows पे नहीं चलेगा. Where it will work on any Linux operating system, BSD, Mac, जो भी Unix like systems है, right? तो POSIX का सब में easy definition क्या है? Unix like of OS, ठीक है. So that is your POSIX. So जो हम लोग हमारे पास में क्या है, डिस्ट्रोज है, what we call डिस्ट्रोज, and जो फेमस है the one which we will be using, CentOS है, Debian है, all this. सूजे है, और यहाँ पर ये भी दो Amazon का भी है, Amazon something, Amazon Linux, AMI I guess कुछ तो बोलते हैं लोग, Oracle का भी है, OELX. तो ये सारे मतलब एक फेडोरा, ये फेडोरा फैमिली से निकले हुए. तो इनमें फैमिलीज रहती हैं, वो फैमिली का मतलब सिमिलर वही कर्नल और वही बहुत सारे टूल्स यूज किया है, और थोड़ा बहुत और उसमें टॉप ऑफ दैट दे एडेड समथिंग, तो दैट्स हाउ दे आर कॉलिंग इट अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ डेबियन में है, डेबियन में कैली भी जो है वो इसी फैमिली से निकला हुआ है, व्हिच इज यूज्ड वेरी मच फॉर द इथिकल हैकिंग और ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट जो अटैक्स होते हैं उसके क्योंकि इसमें टूल्स है, मतलब यहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर्ड और प्री इंस्टॉल्ड टूल्स है. अभी what we have seen, Linux kernel is nothing, is a very bare minimum set of drivers that can help you talk to your hardware, and operating system क्या होता है, bunch of software. So when you combine the software and kernel, what do you get? Operating system, right? So initially what these two people, ये जो दो हमारे पास बंदे थे, रिचर्ड स्टॉलमैन और लाइनस टोरवाल्ड,
दे क्रिएटेड, इसने क्या किया, ग्नू सॉफ्टवेयर बनाया है सारे ओपन मूवमेंट में, और इसने लिनक्स कर्नल बनाया और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो व्हाट वी हैव नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई मीन व्हाट वी हैव बेसिकली इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच आर अगेन जो सारे के सारे यहाँ पे बनी हुई है, जो मैंने बताया था सबको विकिपीडिया पे मैंने जो पेज बताया था, विच इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, लाइक देयर आर not millions then at least thousands, right? Hundred thousands of different operating systems are out there. Distro watch है जहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं, कोई भी बना सकता है, right? There is a एक प्रोजेक्ट है Linux from scratch, तो वो जो करना चाहते हैं, इसको LFS बोला जाता है। तो this is what you know I was saying again and again. Maybe अगर मैंने बोला होगा तो I didn't mean that. I must have accidentally अगर मैंने statement अगर दे दिया है तो, but generally I would not say that in my conscious mind, क्योंकि that is not true. तुम्हारा जो Linux का command है वहाँ पे नहीं चलेगा. That is the actually very prime difference between these two operating systems. Now Windows is trying their attempt is before PowerShell. I think they introduced PowerShell in 2006 or 7. उससे पहले उनका CMD चलता था पूरा बैच का, which has no similarity with Linux. अभी भी मतलब they do the similar stuff, but उन्होंने चीजों को ज्यादा इजी बना के रखा है. Instead of saying ls they are saying the complete name. तो इससे because they have the habit of making things very user friendly, तो उनके कमांड्स बहुत यूजर फ्रेंडली रहेंगे, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर फ्रेंडली रहेगा. इट्स इजी टू गेट स्टार्टेड विद विंडोज. लेकिन द थिंग इज वी what we have most Linux systems, and because Linux systems are very robust, Windows servers are not at that level right now. तो इसलिए 70 to 80% जो इंडस्ट्री है, the world is using right now Linux server. जितना Linux तुमको अच्छा आएगा the better, because what we are going to look more in detail. I mean what is the going on right now, everybody have the जो buzzword चल रहे थे अभी 2-3 साल पहले, microservice. तो microservice is all possible because of the containers, और containers is 90% containers are Linux based. Windows के भी अभी आना स्टार्ट हुए, वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 years ago, बट उससे पहले कोई विंडोज के कंटेनर बना भी नहीं रहा था. और अगेन विंडोज कंटेनर्स में एक विंडोज में प्रॉब्लम इस लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कम्युनिटी टच ही नहीं करती उसको. लिनक्स ओपन पड़ा हुआ है, लोग कंट्रीब्यूट करके बहुत सारी चीजें बना के उसके अंदर कर दे रहे हैं, और विंडोज में हर बार लाइसेंस का मसला आ जाता है. तो ओनली बिग कॉर्पोरेशंस, जो बड़ी फॉर्च्यून 1000, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, दैट आल्सो शोड यू राइट वो लिस्ट. तो यू शुड बी अवेयर, और तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि आई शुड गो फॉर दिस कंपनी टू वर्क. और मतलब जब व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब, वो भी जो थोड़े वो ट्रिक्स एंड टिप्स है, दैट आल्सो वी विल गो थ्रू. और उसी के लिए व्हाट आई हैव बीन फ्रॉम द डे वन, आई एम प्रिपेयरिंग यू गाइस कि तुम्हारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो छोड़ो, और ये साइड वाले पे आओ. जो तुम लोग यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, इसको फेंक दो, और जो तुमको एक्चुअली में जॉब दिलाएंगे, जो तुमको एक्चुअली में नॉलेजेबल बनाएंगे, वो सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ. जो रेडिट है, लिंक्डइन है, ट्विटर वगैरह है. और ये सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, दैट्स द प्रॉब्लम, कि ये थोड़े से मतलब समझने के लिए सब आसान है, वहाँ पे तो सारा यूआई बेस्ड ही है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आई हियर कंप्लेन इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चीजें कैसी होती है. हमारा फेसबुक बहुत आसानी से चल जाता है, इंस्टाग्राम बहुत आसानी से चल जाता है, उसमें तो कुछ है भी नहीं, मतलब समझाने के लिए किसी को कुछ. यू शुड गेट स्टार्ट. तो दीज आर द टूल्स व्हिच विल हेल्प यू गेट जॉब, व्हिच मतलब तुमको सिर्फ जाल बिछाना है, कंपनी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी. एंड दैट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन दे कम नॉकिंग, तुमको प्रिपेयर करना है उस टाइम. ठीक है, तो that is the difference. Little refresher, and that this is something I will do again and again because these are very important. ये तुमको आधी रात से भी उठा के पूछे तो तुमको पता रहना चाहिए कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट. तुमको सेल करने आना चाहिए. द वे यू कैन सेल इट बाय टॉकिंग अबाउट इट. और सारे ये वर्बियाज और जो टर्म्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, दैट जो मैं यूज कर रहा हूँ, द सेम वे में तुमको भी बोलने आना चाहिए. देन उसका जो है ना इम्पैक्ट है. अदरवाइज तुम उसको अपनी भाषा में बोलोगे ना तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है, तुम्हारी तो वैल्यू भी गिर जाएगी, क्योंकि अगर तुम सेम टर्म यूज नहीं करोगे तो.
तो यू हैव टू डू दैट। इसलिए मैं बार बार लोगों के नाम लिख दे रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाकी तो एवरेज और ऑर्डिनरी लोगों को बेसिक बेसिक चीजें पता रहती है, लेकिन तुमको थोड़ा अलग पता रहेगा, देन यू आर अ डिफरेंट। नहीं तो तुम्हारे में और बाकी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। What else? Any other question? No further questions, right? Thank you, sir. Okay, no problem. I mean, बाकी लोग की प्रैक्टिस हो रही है, मतलब लोगों ने लिनक्स स्टार्ट किया है, अगर किया है तो आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव हिट लॉट ऑफ रोडब्लॉक्स, लॉट ऑफ इश्यूज। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू स्पीक अप। तुम्हारा जो स्टेज फ्राइट है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। यहाँ तो भी तुम ऐसा एक क्लोज डोर में यू आर जस्ट टॉकिंग, अनम्यूटिंग योरसेल्फ एंड देन यू आर टॉकिंग। कोई तुमको देख भी नहीं रहा है, कोई तुमको जान भी नहीं रहा है। तो स्टेज फ्राइट क्या रहती है कि सामने वाला मुझे पहचानता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये वो इन्फीरियोरिटी आ जाती है कि वो सोचेगा यार इसको कुछ भी नहीं आता। तो वो वाला भी कम है यहाँ पे। एंड इवेंचुअली यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। आई मीन यू हैव टू ओवरकम योर स्टेज फ्राइट, which is very important. जब तक तुम वो नहीं करोगे, the time you cannot publicly speak, तो तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं आगे। तो you have to learn that in order to get the job or in order to survive as well। तुमको वो करना पड़ेगा, you have to speak, public पे speak करना पड़ेगा। and this is where you have to start preparing yourself। and I think this is a very good platform, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारी कोई शक्ल देख रहा है, ना तुम्हारी कोई एक्सप्रेशन देख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर तुमको डर लग रहा है तो मतलब you have a lot of work to do। तो do that और start करो। Yes, Rasik। Yeah, sir, I'm new to the class. Yeah। Yeah, so तो I तुम have, रिकॉर्डिंग्स yeah, ले लेना, ठीक है। जो हमारे अभी तक जितने लेक्चर्स हुए ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स ले लेना, you can go through those। और yeah, बहुत बेसिक बेसिक हमने कवर किया सो फार। गोइंग, आई थिंक यू हैव द टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट? yeah. Understood. तो ठीक है, बिकॉज हम लोग क्लास ले रहे हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल फॉर, और स्टार्टिंग में जो हो रहा है एकदम बेसिक से जा रहा है। Yeah, तो पीपल जिनको मतलब आता है, तो मतलब जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो उनको कोई इशू नहीं रहेगा। okay, और thank बाकी you. लोग म्यूट कर लो अगर इफ यू गाइस नॉट स्पीकिंग, अननेसेसरी नॉइज हो रही है। हाँ असलम, क्वेश्चन, यू आल्सो हैव क्वेश्चन? Yes, Shazad, I have a question. Can I create one file and one directory with the same name in Linux? No, I think you won't be able to create, because Linux में we can test that, right? अभी मैं test and then we say touch test बन गया एक्चुअली वो, लेकिन कुछ जगह पे अप्लाई नहीं करने दे रहा देता है। एक्चुअली नहीं बनाया उसने, राइट? उसने ओवरराइट कर दिया उसे। टच टेस्ट किया तो didn't create anything। So suppose if there is one directory with the same with the name test, I cannot create a file with the name test. I have to create something else. हाँ, because Because right, ये हमने if you remember right, we seen that man page of किसी का man page देखा था हमने, CD का man या मेकडर का man देखा। उसके अंदर में वो फाइल ही बोलता है, बट बिकॉज लिनक्स में एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ फाइल, वेदर इट्स अ डायरेक्टरी, फोल्डर और इट्स एक्चुअल फाइल। द डिफरेंस इज के फोल्डर रहेगा तो उसके अंदर में मोर फाइल्स रहेंगे, और अगर फाइल रहेगा तो उसमें टेक्स्ट रहेगा। तो लिनक्स के इसमें द वे लिनक्स सी इट, एवरीथिंग एज अ फाइल। और ह्यूमंस अपने लिए है कि वी सी दैट एज अ डायरेक्टरी, जिसके द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी, so Linux calls everything files, whether it's a file or whether it's a directory, right? See that. So तुम्हारा directory and this is a file। इसमें क्या रहेंगे, इसके अंदर में you can have more directories and more files। That's the thing in this, you can have more directories and more files, but here the only thing you can have is the text। You cannot have more file inside file। तो यहाँ पे text रहेगा, और यहाँ पे हमारे साथ पे we can have file, we can have the, and then we can have file।
तो दिस इज द वे शॉर्टकट है ये डायरेक्टरी को लिखने का, ठीक है। तो यू विल सी पीपल, तो दिस इज द डिफरेंस। तो लिनक्स के लिए सेम सेम है, तो बनाने नहीं देता। यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया बिकॉज उसने सप्रेस कर दिया, टच टेस्ट बना नहीं बना, एक ही बना हुआ मेरे पास में। तो दैट इज जनरली नॉट पॉसिबल। वो कंप्लेन करेगा, he won't let it create. Okay. Anything else? No, Shahzad. Okay. Thank you. All right. So let's navigation में I hope सबको basic navigation आ गया होगा. Last I think we have dedicated 2 to 3 lectures on just Linux navigation because बहुत important है, and that is a very base to everything that we will be doing in Linux. तो वो clear होना तुम्हारा, that is a absolute necessity. क्योंकि if you cannot imagine what's happening there, तो तुम्हारा at that time your head will start spinning. तो you should be able to imagine कि क्या है वहाँ पे फाइल सिस्टम और मैं कहाँ पर हूँ. Initially you can do the tedious way में, मतलब कि लाइक जो एग्जांपल मैंने बताया कि मैं हॉल में बैठा हूँ, अगर मुझे रूम में देखना है तो आई हैव 2 ऑप्शन. मैं वहां से झांक के देख सकता हूँ या फिर मैं वहां से चल के आके रूम में फिर देखूंगा मेरे रूम में क्या है, राइट. तो इजी वाला क्या है, मैं वहाँ एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैठे बैठे वहां से देख सकता हूँ झांक कर. दूसरा ये है कि मुझे चल के आना पड़ेगा रूम में और फिर देखना है. तो यू नो व्हाट इज द इजी वे, राइट. वहां से बैठे बैठे देखूंगा, दैट इज इजी. तो वो एक्सपर्ट डू दैट वे. एक्सपर्ट क्या करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और वहीं से पूरा कंट्रोल करते हैं. एमेचर्स क्या करते हैं, जहां पर भी उनको लाइक उसको अगर मेरा 5 BHK का घर है, तो जो एमेचर रहेगा उसको अगर मैं बोलूंगा कि देख क्या तीसरे रूम में क्या है, तो वो चल के जाएगा रूम में, देखेगा क्या है, वो फिर बोलेगा कि अच्छा ये रूम में ये सामान रखा हुआ है. तो ये एमेचर और बिगिनर्स करते हैं. तो इफ यू गाइस डू दैट इज फाइन. बट क्या होगा, जैसे जितना तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम खुद थक जाओगे, बोलेगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, गधा मजदूरी, मुझे थोड़ा स्मार्ट वे में करना चाहिए काम. तो स्मार्ट वे में ये है कि हॉल में ही बैठो और वहीं से सारे रूम के साथ चीजें देखते रहो. तो वो तुमको आएगा कब, प्रैक्टिस से आएगा. तो द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट, और उसके बाद में आसानी से कर सकते. ठीक है. तो और हमेशा मतलब नहीं भी रहा तो सर हाँ क्या करना है, वो ड्रॉ कर लेना फाइल स्ट्रक्चर, और उसके बाद में देखना कि हम किधर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. ठीक है. तो लिनक्स में मतलब बहुत सारे ये हैं टूल्स हैं फाइल बनाने के लिए. हमने देखा था, राइट. लास्ट में वी सीन एको एंड वी हैव सीन टच. एको क्या करेगा, एक नॉन एम्प्टी फाइल बनाएगा. आई थिंक वी हैव दिस डायरेक्टरी फ्रॉम क्लास 5. अभी मैंने देखो दैट्स व्हाट आई डिड, जो मैं बोल रहा था एमेचर करते हैं, मैंने क्या किया, हर जगह पे सीधी सीधी करके आया. आई कुड हैव स्टेड इन माय होम डायरेक्टरी और वहां से भी मैं देख सकता था इसको लाइक दिस. अभी मैं सिर्फ सीडी एंटर करूंगा विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट. इससे पहले क्या किया था, मैंने सीडी को एक आर्गुमेंट पास किया, दैट इज फाइल कमांड. और उससे पहले मैंने क्लास 05 दिया था सीडी को. और मैं अगर जस्ट सीडी एंटर करूंगा तो क्या करेगा, विदाउट एनी आर्गुमेंट वो मुझे मेरे होम डायरेक्टरी पे लाके छोड़ देगा. तो सी द डिफरेंस. सो दिस टिल्डा, वी नो व्हाट इज द टिल्डा. हमने लास्ट टाइम पे इसका ये जो प्रॉम्प्ट है, शेल प्रॉम्प्ट बोला जाता है इसको. ये सीन, ये कंट्रोल किससे होता है, PS1 से होता है. वी कैन ऑल्सो कंट्रोल, एक लेक्चर में बता दूंगा सिंपल सा हम लोग ये करके. मतलब वी कैन कीप इट स्टैटिक, वी कैन कीप इट डायनामिक. राइट नाउ ये डायनामिक है बिकॉज एवरी यूजर इस सर्वर पे लॉगिन करेगा, उसका ऑटोमेटिक नेम यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. एंड देन दिस डायरेक्टरीज आर कमिंग एज वेल. तो ये सारी चीजें मतलब मैं टाइम लगा सकता हूँ यहाँ पे, डेट लगा सकता हूँ. बहुत सारे लोग तो इतना कस्टमाइज कर देते हैं कि एकदम कलरफुल रहता है यहाँ पे, ऐसा अच्छा खासा बहुत शाइनी दिखता है. तो सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल. लेकिन बेसिक्स क्या है, तुमको इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस, देयर इज अ PS1 वैल्यू व्हिच यू कैन यूज टू मैनिपुलेट दिस. तो यहाँ से किया था मैंने. अगर मुझे यहीं से देखना है, सिटिंग एट माय होम, आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर रूम, राइट. मुझे देखना है कि मेरे फाइल कमांड जो डायरेक्टरी है उसमें क्या है. तो आई जस्ट नीड टू बी अवेयर कि ये फाइल जो है ये कहाँ पर है. सो कीप इट इजी. अभी थोड़े स्टार्टिंग लेक्चर में आई ऑलवेज ड्रॉ दिस, सो पीपल हु आर न्यू उनको
आपको समझ में आएगा सही से। Now, who can tell me which is the configuration directory in Linux? कौन सी डायरेक्टरी में configuration files रहती है? ATC. Correct. I mean, just raise your hand because I know people, serious or people who have background or work with the Linux, उनके तो जबान पे रहेगी. But I want that for everyone, because जितने भी यहाँ पर है सबकी जबान पे रहना चाहिए. The moment somebody says configuration file मुझे देखनी है, कहाँ पे जाना चाहिए? Right? Yes, Rosemary. etc. Like etc and etc, right? So you can say etc as well. That's the way normally people will say. Again, this is a difference between expert and amateur beginners. So nothing, no wrong or right, right? It's just you'll see a lot of experienced people. They simply call it etc directory like this. और हमारे जो यूजर्स हैं सारे के सारे यूजर दे विल बी पार्ट ऑफ होम डायरेक्टरी. And then there are और भी directories है like USR है and var है and temp है. We have seen all those as well. अभी यहाँ this is my home directory और मेरा जो user है that user has a name. तो यहाँ पे multiple user रह सकते हैं. अभी मैं we are only concentrating on this user. And then इस user में मेरे पास में यहाँ पे files थे, right? So this is my location right now. If I do pwd, मैंने इसके साथ में चला है, उसको गलत बोल दिया. तो ये / which is this. तो ये यहाँ से होम में जा रहा है, तो उसके यहाँ पर आया और उसके बाद वहां से 601 में आ गए, यहाँ से यहाँ पर आया. तो दिस इज माय एब्सोल्यूट पाथ. तो pwd इज द कमांड व्हिच कैन टेल यू एनी टाइम तुम जो भी डायरेक्टरी में बैठे हुए हो वो तुमको क्या करेगा, हमेशा एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट करके दे देगा. तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलता है. ठीक. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू योर टिल्डा. तो टिल्डा की जो वैल्यू क्या है ये है. तो व्हेन आई से टिल्डा आई एम एक्चुअली सेइंग दिस. कहीं पर भी मैं अगर बोलूंगा टिल्डा तो आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये उसको वेरिएबल बना हुआ है एंड वो स्टोर्ड है. तो अगेन इट्स अ शेल वेरिएबल. वी डोंट नीड टू गो दैट इनटू उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. वी विल सी दैट लेटर. तो इसका जो वेरिएबल एक कंटेनर रहता है जिसमें यू कैन स्टोर अ वैल्यू, सिंपल सा. तो ये एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके नाम पे और उसकी वैल्यू हमेशा ये है एंड इट्स अ डायनामिक वेरिएबल. दिस इज नॉट अ स्टैटिक वेरिएबल के हर बार इसकी वैल्यू यही रहेगी. जैसे यूजर चेंज होगा तो ये क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा बदली होती रहेगी. तो आज शेख 01 है, कल 0203 रहेगा, तो उस तरीके से वो चेंज होते रहेगी उसके बाद. नेक्स्ट यहाँ अब यहाँ पर मतलब आई नॉट राइट द अदर्स बट क्लास 05 है मेरे पास में और मैंने क्या किया, आई एम सिटिंग हियर लाइक मेरा लोकेशन जो है राइट नाउ इट्स यहाँ. तो मैं यहाँ से सीडी करके अंदर जा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से बैठे बैठे भी आई कैन जस्ट पीक इन कि वहाँ पे क्या है. एंड दैट्स व्हाट मतलब तुम लोग ने करना है इवेंचुअली. ये मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा बट बाद में तुम लोग को प्रैक्टिस करना और ये तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए. तो राइट मैं यहाँ था, आई कैन डू 2 बार मैं सीडी कर सकता हूँ या 1 बार मैं सीडी कर सकता हूँ. इट्स टोटली अप टू मी. आई कैन एक बार सीडी करके यहाँ हूँ, दूसरी बार सीडी करके यहाँ हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट सीडी क्लास 05 और / देके यहाँ पे कर सकता हूँ. राइट. तो इन बोथ केसेस आई विल बी यूजिंग रिलेटिव पाथ. आई कैन ऑल्सो यूज एब्सोल्यूट पाथ. तो एब्सोल्यूट पाथ क्या रहेगा, ऑल द वे यहाँ से यहाँ बनेगा. तो इस केस में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट पाथ जो है बहुत बड़ा बनने वाला है कंपेयर टू रिलेटिव पाथ. अगर मुझे if I'm sitting here and I need to go in this directory, तो मेरा एक सिंपल सा कमांड क्या बनेगा, I can simply say cd class 05 और मैं उस डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा. बट ये क्या है, रिलेटिव पाथ है बिकॉज इसमें रूट नहीं आया हुआ. एब्सोल्यूट पाथ की कंडीशन क्या है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट. तो अगर इसको मैं मुझे एब्सोल्यूट पाथ से करना है तो आई हैव टू से / फिर उसके बाद होम, उसके बाद में शेख 01 और उसके बाद में क्लास 05. So this is now absolute path and what we had above was the relative path.
तो इस केस में what is easier to use? Relative path. I can quickly use that. What the best practice is always absolute path, and best practice मतलब people don't use generally here on the shell, but ज़्यादातर जब scripting होती है, automation किया जाता है, तो it's highly recommended to always use absolute path. ठीक है? Because उसके जो है ना डाउन साइड्स वी विल सी दैट. अभी हम लोग तुम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट इस पे करो कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है. तो दिस इज माय रिलेटिव पाथ, दिस इज माय एब्सोल्यूट पाथ. तो ये एक बार मैं ये चलाऊंगा, और जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो एक बार मैं फिर से सीडी फाइल कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पर आ जाऊंगा. ठीक है. और आई कुड सिंपली रन सिंगल कमांड जिसमें क्या रहेगा, सीडी /05 फाइल कमांड्स. तो आई कैन डू दिस, और आई कैन रन एक बार एक एक करके ये कर सकता हूँ, और आई कैन सिंपली रन ls फ्रॉम हियर. मतलब यहाँ से बैठे बैठे भी मैं कर सकता हूँ. अभी ls को भी आर्गुमेंट दे दूंगा 05 फाइल कमांड्स. तो ls क्या करता है, अगर ls को आर्गुमेंट नहीं दिया तो क्या करता है, करंट डायरेक्टरी की सारी चीजें दिखा देता है. तो उसका मतलब क्या है, ls को अगर इस मैंने जस्ट ls रन किया तो वो क्या करेगा पता है, ये ऐसा रन होता है इन रियलिटी. तो pwd जो है एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल देखा था ना हमने pwd. और लिनक्स में वेरिएबल रहता है जिसको प्रिंट करना है तो $साइन लगा के करना रहता है, जिसका भी आउटपुट सेम आएगा. तो ये एक वेरिएबल है विच इज एनवायरमेंट वेरिएबल. तो जब मैं ls करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देता हूँ ना, तो वो ये लगा देता है यहाँ पर. ये इस तरह से चल रहा है. तो जब मैं ये करूँ या ये करूँ, इट्स सेम थिंग, बट एक्चुअली में ये हो रहा है. जब मैं उसको कुछ भी नहीं देता हूँ ना, तो वो सिस्टम को इस तरीके का कमांड जाता है, रजिस्टर होता है. जब मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ तो एक आर्ग्यूमेंट उसको कौन सी डायरेक्टरी में प्रिंट करना है वो उसके पास ऑलवेज रहती है. ठीक है. तो थोड़ा बहुत वेरिएबल्स, राइट, जो लास्ट टाइम पे जो वेरिएबल जो कंट्रोल करता है शेल को, दैट इज PS1 वेरिएबल. तो PS1 वेरिएबल यहाँ पे कहीं पे चिपका देता हूँ जिससे वो रहेगा नोट्स पे, तो पीपल कैन थिंक कि क्या था ये, क्यों था ये. ठीक है. एंड सिमिलरली मैं उसको ये आर्गुमेंट दे दूंगा. तो दीज अगेन इफ यू गो टू मैन, तो हमने क्या दिया, फाइल दिया, बट वी हैव नॉट पास्ड ऑप्शन. ऑप्शन क्या है, -L है, A है. हिडन फाइल देखने के लिए आई कैन से A. और अगर मुझे लिस्ट में देखना है तो आई कैन से L, जो नीचे मिल जाएगा अपने को. तो दोज आर ऑप्शन. तो अगर मुझे इसको लिस्ट एज अ लिस्ट देखना है मुझे, तो आई कैन सिंपली पास ls -L और क्लास 05 डबल टैप देके. अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, राइट. तो मेरे पास में क्या है, क्लास 01 है, क्लास 05 है. तो मैंने बताया था इसमें टैब कंप्लीशन रहता है, आई डोंट नीड टू टाइप एनीथिंग. तो मैंने C टाइप करूंगा तो वो क्या करेगा, C से सारे जो वर्ड है वो आ जाएंगे. अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी ना तो सिंगल टैप काम नहीं करेगा. ठीक है. तो वो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय C, लाइक. तो यहाँ पर मैंने C टाइप किया तो उसने क्या किया, क्लास 0 कंप्लीट कर दिया, बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ ऑफ दिस, राइट. तो उसने कंप्लीट किया. वो बोल रहा है क्या, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मतलब 1 दिखाऊं तुमको या 5 दिखाऊं. तो यहाँ पे वो रुक जाता है. तो अगर जब वो रुका ना तो डबल टैप प्रेस करना. तो व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू प्रेस डबल टैप, तो वो जो बाकी पॉसिबिलिटीज हैं वो दिखा देगा. तो वो क्या कर रहा है, हमने सिर्फ C दिया था, उसने नैरो करके इतना कर दिया और बोल रहा है कि अभी 2 है, इसमें से बताओ मैं क्या लूं. तो आई जस्ट नीड टू अपडेट द नंबर. मुझे 5 करना है तो आई सिंपली प्रेस 5 और टैप कर दूंगा, वो आगे चलेगा. फिर डबल टैप करूंगा तो क्या करेगा, उसके अंदर सारे दिखा देगा. तो अभी यहाँ पे मैंने जब टैप किया, डबल टैप किया ना सिंगल, तो एक ही फाइल है इसलिए उसने खुद से ऑटो कंप्लीट कर लिया. अगर इसमें 2 रहता था तो वो फिर से इस तरीके का बिहेवियर रहता था, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर उसको कुछ दिया भी नहीं था, हिंट भी नहीं दिया कि F वाले दिखाओ मुझे या फिर T वाले दिखाओ. मैंने सिर्फ ब्लैंक टैप दे दिया उसको यहाँ पर. तो कुछ भी टाइप नहीं किया, ब्लैंक टैप दे दिया. तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे 1 था तो उसने वो दिखा दिया. ठीक है. तो ये टैप का करेगा. तो यू शुड ऑलवेज यूज टैप कंप्लीशन. कभी टाइप नहीं करना है. अगर तुमने टाइप भी कर दिया ना तो इनमें आके अगर एक भी फाइल रहेगी, लाइक यहाँ पर मान लो कि रिपोजिटरी है, तो मैं ls रिपोजिटरी में पूरा टाइप कर दूंगा ऐसा रिपोजिटरी. तो उसको भी उसका लास्ट एक लोग क्या करते हैं, पूरा टाइप भी करेंगे, अगर 4-5 कैरेक्टर का रहेगा तो इनका हटा के फिर से टैप देते हैं. जस्ट टैप से क्या पता चलेगा कि यू आर राइट. अगर तुम यहाँ पे गलत, अगर मैं इसको ऐसा दे देता हूँ,
और ls करूँगा तो ये क्या हुआ, मेरा कमांड एक फेलियर में चले गया। अगर यहाँ पे मैं टैप करता ना एक हटा के, तो टैब मुझे बता देता देखो मेरी स्क्रीन कैसा ब्लिंक कर रही है, तो मुझे बोल रहा है कि तुम देखना चाह रहे हो दैट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, 1-2 मिनट I'll be okay. So I'm back. तो ये टैब कंप्लीशन विच थोड़ा बहुत हमको हेल्प कर लेता है, दैट्स व्हाट टैब कैन डू। ठीक है, तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ टैब कंप्लीशन। और ये टैब कंप्लीशन भी मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं रहता इनेबल, बट ये कैसे में होगा जब तुम कुछ बहुत ही मतलब बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो यू माइट नॉट सी दैट, जो कि पहले तो ज्यादातर लोग एनकाउंटर नहीं करते थे, बट कंटेनर्स में भी डू एनकाउंटर, क्योंकि कंटेनर्स को क्या किया जाता है, लाइट वेट किया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन रहती है विच वी विल नॉट यूज इन आवर एप्लीकेशन, लाइक अगर मैं सर्वर पे एक कोई भी एप्लीकेशन रन करूंगा तो आई नेवर यूज दैट अगेन। तो वहां पर ये सब की जरूरत नहीं है मुझे एक्स्ट्रा चीजों की, तो मैं वहां पे मुझे क्या करना है, आई वांट टू मेक इट एज लाइट वेट एज पॉसिबल जितना तो मैं बहुत सारे अननेसेसरी चीजें जो आई डोंट यूज इट, दिस आर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, जहाँ पे एक ह्यूमन इंटरैक्ट कर रहा है तो ही वांट्स इट, लेकिन अगर तुम्हारी एक एप्लीकेशन उस पर चल रही है तो एक बार उसको रन कर दिया तो खत्म हुआ। यू डोंट इवन नीड मतलब कंटेनर्स पे वीआई वगैरह भी नहीं रहते, सारे निकाल दिया, जो फाइल एडिटर्स रहते हैं वो भी नहीं रहते, वो सारे उनको भी निकाल दिया जाता है, जो अभी हमको देखना है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट टैब कंप्लीशन। मुझे यहीं से देखना है तो आई से 5 एंड देन आई विल प्रेस 5 और मैं एलएस कर दूंगा। तो उसने क्या किया, यहाँ के सारे दिखा दिए, तो आई थिंक ये सारे फाइल्स हमने उस दिन पे बनाए थे। तो दिस इज मैंने क्या किया, इसको फाइल्स एलएस कमांड को फाइल पास किया। आई कैन ऑल्सो पास ऑप्शन, तो मैंने -l पास करूंगा तो इस तरीके से आ गई, राइट। तो ये परमिशंस है, ये ओनर्स हैं, राइट, विल सी दीज थिंग्स, ये 2 ओनर है और ये फाइल का साइज है। ठीक है, और ये जो है उसका टाइम स्टैम्प है जब ये फाइल बनाई गई थी। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि टच कमांड कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द टाइम, राइट।
तो अगर विद ये टाइम कब चेंज होगा ये फाइल में, अगर मैं कुछ लिखूंगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नया टाइम आ जाएगा मॉडिफाइड वाला। लेकिन अगर मुझे बिना कुछ चेंज किए करना है तो I mean you can add and delete that, but again that would require you to edit the file. तो बिना एडिट किए फाइल आई कैन ऑल्सो मॉडिफाई द टाइम स्टैम्प। तो वो दैट समथिंग इज पॉसिबल विद द टच कमांड। आई कैन सिंपली यूज टच कमांड, वो कुछ नहीं करेगा, उसका टाइम अपडेट कर देगा, राइट। तो टच कैन अपडेट द टाइम ऑफ द फाइल और इट कैन क्रिएट अ एम्प्टी फाइल, राइट। सो वन जो हमने देखा था टच, you'll see a lot of people using touch to create empty file। तो touch क्या करेगा, empty file बनाएगा अपडेट टाइम, ठीक है। तो ये होता है काम सर्वर। इसके यूज केस मैंने लास्ट टाइम एक से एक्सप्लेन किया था, बट वी विल सी दैट यूज केस इन एक्शन एज वेल। तो ये टच दो चीज करता है। उसके अलावा हमने एको देखा है, वी हैव सीन एको टू क्रिएट फाइल। तो एको से हमने एक फाइल बनाई है यहाँ पे, जिसका साइज क्या बता रहा है, 1 बाइट। इसका ये टच से बनाया था, इसका दिखा रहा है 0 बाइट। तो ये एम्प्टी फाइल है, इट डजंट कंटेन एनीथिंग। बट ये वाली फाइल जो है 1 बाइट है इसके अंदर में, इसके अंदर में एक एंटर है। दैट्स समथिंग वी कैन अगेन, मुझे कैट करना है तो अभी क्या हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया, आई एम सिटिंग हियर और मैंने यहाँ से किया, तो मुझे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा कैट करूँ और फाइल 01.txt टाइप करूँगा तो फेल करेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और जो सारी फाइल्स है, द फाइल दीस फाइल्स आर हियर। The file that I'm talking about .txt. ओके, तो मैंने यहाँ से एलएस करके देख लिया था ये फाइल। अब मैं कैट यहीं पे कर रहा हूँ, तो मैं व्हाट द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग कि फाइल है यहाँ पर, मैं बैठा हुआ हॉल में हूँ और सारे मेरे जो फाइल्स है मेरे इस फाइल कमांड्स वाले रूम में रखे हुए हैं और मैं वहीं पे उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हॉल में तो है ही नहीं, मतलब हॉल में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे फिर से अगर इस फाइल को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कैट क्लास 05 अगेन फाइल कमांड, और उसके बाद में अब मैं 2 बार टैब दूंगा बिकॉज देयर इज नो, अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर में वी हैव 3 फाइल्स। अगर एक फाइल रहती तो आई कैन सिंपली प्रेस टैब और वो ऑटोमेटिक उसको लोड कर लेता था मेरे लाइन पर। लेकिन आई हैव मोर देन 1 फाइल, राइट। तो उसके लिए मुझे टैब दूंगा तो नहीं चलेगा, मतलब चल गया तो चल गया, क्योंकि उसने अभी बताया कि ये कॉमन है, जितने भी यहाँ पे फाइल्स हैं ऑल द फाइल्स हैव दिस कॉमन। तो ठीक है, मैंने इतना तो लोड कर लिया, तुमने मुझे नहीं बताया, तो आप यू टेल मी व्हिच वंस टू लोड। तो अभी फिर से मैं डबल टैप दूंगा तो खुद ही मुझे बता देगा कि दीज आर योर ऑप्शंस। तो मुझे बताओ, मुझे हिंट दो कौन सी फाइल में लोड करूँ। तो आई कैन सिंपली ट्विक, एक वर्ड में ट्विक कर दूंगा, किसी का भी यहाँ पर एक ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो फाइल मुझे वो बता देगा। तो 1 किया मैंने और फिर से टैप दूंगा तो ऑटोमेटिक उसने ऑटो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसको अब समझ गया कि एक ही फाइल है, वहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्पेस भी आ जाता है। आई कैन हिट एंटर, तो देखोगे मेरा जो शेल प्रॉम्प्ट है वो वापस आ गया है। देयर इज नो एक्स्ट्रा, देयर इज नो वाइट स्पेस, राइट। जो एम्प्टी लाइन नहीं है यहाँ पर अभी। मैं फिर से इसको अप एरो करता हूँ एंड ऑल आई हैव टू डू इज चेंज 1 to 2 और एंटर। तो अब यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, राइट, बिकॉज इसके अंदर में एक एक्स्ट्रा एंटर है। दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड विद द एको कमांड। तो एको कमांड से अगर फाइल बनाओगे तो यू विल ऑलवेज हैव 1 एंटर, राइट। तो इफ यू वांट फाइल एम्प्टी फाइल, I mean कोई empty फाइल echo command से नहीं बनाता, because technically this is not an empty file. I mean it doesn't contain any stuff or any alphabet, मतलब कुछ इसके अंदर में text नहीं है, but this is not an empty file. It doesn't qualify as empty file because उसका value 1 आ गया, size इसका ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये conditions में भी यूज होती है लिनक्स में, मतलब जब स्क्रिप्टिंग होती है, ऑटोमेशन किया जाता है तो उसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज यूजफुल देयर एज वेल। तो अगर तुम एम्प्टी फाइल से बनाओगे तो लिनक्स में जो चेक करने का कंडीशन रहता है, तो वो कंडीशन इसको नहीं बोलेगा, ये वो एम्प्टी इसको बोलेगा, इसको नहीं बोलेगा एम्प्टी, राइट। तो दैट विल बिकम मिसलीडिंग। तो वो जो हमारा ऑटोमेशन रहेगा उस टाइम पे माइट नॉट वर्क अगर हमने एको से एम्प्टी फाइल बनाई हुई होगी तो, बिकॉज टेक्निकली दैट नॉट एम्प्टी फाइल, ठीक है। तो एको से वी कैन प्रिंट, एको का मैंने अभी एक ये बता रहा है, मैंने pw एक वेरिएबल है मेरे पास, उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया है।
तो वेरिएबल को एलएस इस तरह से नहीं किया जाएगा, दैट इज रॉन्ग इम्प्लीमेंट, ये बताया मैंने। एलएस जो रहेगा वो हमने इस तरह से रन किया था, ठीक। बट वेरिएबल का वैल्यू मुझे देखना है तो मैं इस तरह से रन करूंगा। तो एको क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करता है, तो आई कैन सिंपली डू एको प्रिंट दिस मैसेज, ठीक है। तो उसने वही प्रिंट कर दिया मैसेज को। एंड एको क्या करेगा, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है कि अगर मैं कुछ एक वैल्यू सेट करूँ और उसको वो वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक आई कैन से माय नेम, और मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। तो अब ये क्या, ये वेरिएबल बन गया है, राइट। ये वेरिएबल का मतलब क्या रहता है, प्लेस होल्डर है, कंटेनर है जिसमें ये वैल्यू है। ये तो मतलब मैंने बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल बताया, क्योंकि इसमें वेरिएबल का ही नाम बड़ा दिख रहा है और ये छोटा है, तो ज्यादातर तुम्हारा ये वेरिएबल का ये ज्यादा बड़ा रहेगा, प्लस और रिपीटेबल रहेगा। मतलब कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड कंसेप्ट है, ड्राई कंसेप्ट बोला जाता है जिसको, डू नॉट रिपीट योर कोड। मैं चीजें लिख देता हूँ यहाँ पर, विच वी विल सी दैट लेटर एज वेल। ड्राई कंसेप्ट रहता है जिसका फुल फॉर्म रहता है डू नॉट डी आर और वाई। तो एक ड्राई कंसेप्ट रहता है, वेट कंसेप्ट रहता है, लेकिन ज्यादातर वेट इज जस्ट मॉकरी सॉर्ट, बट ज्यादातर ड्राई कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में यूज होता है DRY, ठीक है, जिसका मतलब है डू नॉट रिपीट योर कोड। और वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कंप्लाई, मतलब ड्राई को वायलेट ना, मतलब कंप्लाई विद द ड्राई का ड्राई, ये सारी चीजें हेल्प करती है हमको। तो एनीवे आई सेट दिस वेरिएबल, मैंने ये वेरिएबल ये किया हूँ। अब ये वेरिएबल का वैल्यू मुझे देखना है, राइट। तो अब ये इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन। और अगर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आई हैव टू सिंपली से माय नेम लाइक दिस, डॉलर लगा के करना पड़ेगा। तो अगर मैं एंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज उसने क्या किया है, एरर मैसेज देखो क्या बोल रहा है, बैक कमांड नॉट फाउंड। तो इट इज एज गुड एज दिस थिंग, राइट। दोनों ने सेम मैसेज प्रिंट किया। जब मैंने ये किया और ये किया, तो वो क्या कर रहा है, शेल ने और बैश ने क्या किया है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है रन टाइम पे। उसने इसकी वैल्यू में ये, इसकी जगह पे ये लगा दिया और उसको फिर रन किया उसने, लाइक जैसा मैंने यहाँ पर उसको रन किया है, सिमिलरली यहाँ पर रन हुआ। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू देखनी है तो आई कैन सिंपली यूज एको एंड द वेरिएबल नेम, एंड ठीक है, इस तरीके से चल जाएगा। गिव मी वन मिनट। ठीक है, दैट इज अ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल जो है स्क्रिप्टिंग में विल सी दैट इन मोर डेप्थ, बट यहाँ पे जस्ट यूसेज बता रहा था। यू कैन प्रिंट अ मैसेज, यू कैन प्रिंट अ वेरिएबल, और यू कैन आल्सो क्रिएट अ फाइल। और जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया है, वी कैन रीडायरेक्ट दैट एज वेल, राइट। तो वी हैव सीन द रीडायरेक्शंस, द बेसिक रीडायरेक्शन, राइट। रीडायरेक्शन आल्सो हैव लॉट ऑफ, मतलब मोर देन जो हमने देखा बेसिक्स। तो रीडायरेक्शंस भी है व्हिच वी विल सी थोड़ा और उसको डिटेल में आफ्टर वी पास द फाइल। तो अगर मुझे इसको किसी फाइल में करना है तो आई सिंपली हैव टू रीडायरेक्ट दिस, राइट। लास्ट टाइम वी हैव सीन दिस, यूज दिस फाइल यहाँ पर तो है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज बार बार मुझे क्या हो रहा है, लंबा कमांड चलाना पड़ रहा है, एंड दैट इज माय वर्किंग डायरेक्टरी। आई एम यूजिंग मोर देन वन कमांड, तो लेट मी गो देयर इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली। ये बार बार यूज करने की बजाय एक बार ही अब मैंने कर दिया। आई कैन प्रेस Ctrl L टू क्लियर द स्क्रीन, समथिंग एल्स। एको
कमांड अप एरो से मिल जाएगा, रिडायरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको 504.txt। ठीक है, तो दिस इज रिडायरेक्शन। तो ये सिंगल एरो ग्रेटर देन साइन, डबल एरो क्या करेगा, अपेंड करेगा, सिंगल एरो रिप्लेस करता है। तो रिडायरेक्शंस में सिंगल एंड डबल, ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और ये अपेंड करेगा। एनी डाउट ये रिडायरेक्शन में किसी को? दिस इज वेरी अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, सो इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझना, मतलब क्योंकि रिडायरेक्शन बहुत ज्यादा हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली विल सी पीपल यूज इन, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन एप्लीकेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल विल यूज दैट। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत कॉमनली यूज होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सो यू शुड मास्टर दिस एंड यू शुड नो व्हाट्स क्या होगा। Okay, no questions, I guess. I hope people, you guys are paying attention. Okay. So Abhi, right now I'm here, right? From here I've moved. So cut forward. I'm here. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और फाइल बना ली, और अगर यहाँ पर मैं pwd करूँगा तो एक्चुअली इट्स ऑलरेडी हियर, राइट? सो जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसके अंदर में ऑलरेडी तुमको दिखाई देगा। कुछ कुछ जो मतलब साइंटिफिक रहेंगे और कुछ मतलब सिक्योरिटी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेंगे, उसके ऊपर में ये नहीं रहेगा। अगेन दिस कैन बी कंप्लीटली मैनिपुलेटेड बाय PS वैल्यू, PS1 का वैल्यू लगा के हम लोग इसको हटा सकते हैं। वी डोंट, इफ यू गाइस आल्सो डोंट वांट टू सी दैट, सिंपली रिमूव इट, राइट? तो वो मैं एक बार करके दिखा दूंगा स्टैटिक वे में, और डायनामिक वे में भी कर सकते हैं। कलर वालर जो आ रहा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय PS1, जो लिनक्स का शेल, प्रॉम्प्ट शेल बोला जाता है जिसको, उससे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ये echo command you can print or you can redirect the message, print message, print variable, or create non-empty create file. तो ये print इतनी चीजें करेगा। एंड आई थिंक और भी कुछ कमांड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो दूसरा है जिससे हम लोग एडिट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग किसी फाइल को एडिट नहीं कर पा रहे, राइट? अभी ये टच कमांड से बन गया है, एको से भी फाइल बन जा रही है, उसमें कंटेंट चले जा रहा है, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एडिट करने के लिए जो कमांड है, नैनो है, विम है, जिसको विम इम्प्रूव लेटेस्ट वर्जन है, एंड वी इज द पुराना वर्जन। सो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल यूजिंग वी एंड विम। तो दोनों एक दूसरे के एलियस है, दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग। जो पीपल जो ज्यादा पुराने लोग हैं, तो दे हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग, बिकॉज उनके अगेन मोर लाइक इट्स देयर इन सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड है वी, तो उनके जो फिंगर मसल मेमोरी है वो हमेशा VI टाइप कर देती है। न्यू पीपल, यू विल सी लॉट ऑफ न्यू पीपल, दे आर यूजिंग विम, और जो पुराने रहेंगे वो VI यूज करेंगे, विच इज बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग्स। उसके अलावा नैनो है एंड ईमैक है जो कॉमनली यूज होता है, बट आई थिंक व्हाट यू शुड नो इज VI. Nano is the easiest to get started with. VI भी similar है, right? तो whether we start with Nano or VI, I mean you just have to do the practice. तो इसमें कुछ common चीजें हैं जो लोग फंस जाते हैं, and people coming from the Windows or graphical जो interface से आते हैं, तो they find it difficult to work with the VI in the beginning. But I think वो difficulty तुमको कभी भी तुम start करो VI से, you will always have. नैनो से करने से क्या होता है, अगेन यू गेट इनटू दैट कॉम्प्लिसिटी मोड, तुम फिर से वो कॉम्प्लिसेंट हो जाते हो कि ठीक है मुझे सिमिलर वे में मिल रहा है, मैं फाइल लिखूंगा, फाइल को सेव किया, फाइल को क्लोज किया। तो उसमें भी वही, उसमें मतलब हम लोग जब फाइल बनाते हैं तो हम लोग Ctrl+S करते हैं और फिर Ctrl+C करके फाइल को क्लोज कर देते हैं। नॉर्मल नोटपैड की बात कर रहा हूँ मैं, नोटपैड ओपन करूंगा तो नोटपैड क्या है, मेरा एक एडिटर है, राइट? जो ग्राफिकल वे में मुझे फाइल एडिट करने दे रहा है। हमको क्या चाहिए, वी वांट इक्विवेलेंट ऑफ नोटपैड, जो ग्राफिकल वे में हमको फाइल एडिट करने देता है, हमको CLI वे में फाइल एडिट करना। तो दीज आर योर एडिटर्स। और भी मतलब बहुत सारे होंगे, मतलब आते रहते हैं, बट VI इज द मोस्ट कॉमन
और VI जो ऐसा है ये बाय डिफॉल्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहता है. नैनो विल नॉट हैव बाय डिफॉल्ट, ईमैक विल नॉट हैव बाय डिफॉल्ट, और जो भी रहेंगे ना बाय डिफॉल्ट नहीं रहेंगे. बट VI you'll have on the most modern or the Linux distributions or operating systems. ठीक है. तो we'll also see the VI. तो like for any other command, VI works in a similar way. तुमको पहले command देना है, उसके बाद में command के argument देना है. Let's see the man page. तो VI किया या वो किया, दोनों का वही आता है. तो VI improved को लोग ने Vim बनाया, प्रोग्रामर्स टेक्स्ट एडिटर. ठीक है. तो that's what we are now. और इसका सिनॉप्सिस देखोगे तुम, तो यहाँ पे उसने ये दे रखा है कि ऑप्शंस पास करना है एंड फाइल पास करना है, एंड बोथ आर इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है कि these are optional. You can directly run Vim without passing this option and still the command will execute fine. So we can pass option and then we can pass the file. और डॉट डॉट का मतलब रहता है you can pass more than one file. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग को अगर अब मुझे क्या करना है, आई कैन क्लीन स्क्रीन ls. मेरे पास 4 फाइल है और मैं VI करके या Vim कर लेता हूँ. आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग VI. तो VI किया तो ये ओपन हो गया. ठीक है. और VI में सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी नजर नीचे रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है. तो नीचे में ये फाइल का लोकेशन बता दे रहा है, लाइन नंबर बता दे रहा है और कैरेक्टर्स बता रहा है फाइल में कितने हैं. ठीक है. और यहाँ पे सारे अब जो है ना देयर आर 2 मोड VI में. एक एस्केप मोड रहता है और एक एडिटर मोड रहता है. ठीक है. तो VI में वी हैव 2 मोड्स, एक एस्केप मोड है, एक एडिटर मोड है. व्हेन यू एंटर इनटू द फाइल तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड रहेगा इनेबल, एडिटर मोड रहेगा. दिस इज बाय डिफॉल्ट. यस असलम. Sorry to interrupt, Sadat. Before moving to VI, I just have one question for the redirection which you told before. That is one arrow. That is the single arrow will replace it, and double arrow will append. So append will append here means that it will copy the text of the file to the new file, right? विद द हाँ, तो अगर नाउ दैट डिपेंड्स किसके साथ में यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग दैट अपेंड विद एको और वी आर यूजिंग विद द कैट. तो ज्यादातर पीपल क्या करेंगे, कैट से कैट और एको, दीज आर 2 कॉमन्स, बट इट कुड बी एनीथिंग. ये रिडायरेक्शन का मतलब है बेसिकली आउटपुट अपेंड किया जाएगा. मतलब लेट्स तो ls ने भी क्या किया, ये आउटपुट दे रहा है. अभी इस आउटपुट को भी मैं कहीं पे आई कैन स्टोर समवेयर इन अ फाइल. तो आई कैन मैं यहाँ पे आउटपुट डॉट ls, क्योंकि आउटपुट इसका था तो मैंने ये किया. तो शेल पे मुझे कुछ नहीं है. इसी मैंने क्या किया, इसका जो आउटपुट आ रहा था उसको मैंने रीडायरेक्ट कर दिया. तो गुड यू आस्क क्वेश्चन. आई forgot to specify फाइल डिस्क्रिप्टर जो रहते हैं, कॉमन फाइल डिस्क्रिप्टर है 0, 1 and 2. 0 का मतलब रहता है इनपुट, आउटपुट. थोड़ा सा इसको और देखेंगे. लाइक आई सेड राइट, रिडायरेक्शन वी विल सी दैट. तो 3 0 1 2 रहता है हमारे पास में. तो 0 इनपुट है. तो बेसिकली जब मैंने ls कमांड चलाया दैट वाज द इनपुट, राइट. आई हो गया इनपुट आउटपुट जो बोला जाता है. तो ये इनपुट था. अब इसने क्या किया, मुझे आउटपुट दिया. तो ये क्या है, 2 है. फाइल डिस्क्रिप्टर अभी सिर्फ ऐसा समझो कि 1 2 है, राइट. फाइल डिस्क्रिप्टर में नहीं. तो दिस इज योर 2, सॉरी दिस इज योर 1. तो ये 1 था, ये 0 था, ये 2 है. और अगर मैंने ये गलत कमांड चलाया, इनपुट गलत है, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो किया. तो दिस इज 2. तो ये 2 में आ गया. तो आई कैन रीडायरेक्ट दीज थिंग्स इनटू अ फाइल. मतलब जब मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ. तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं इसमें क्या लेते हैं. तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सिर्फ आउटपुट को 1 को रीडायरेक्ट कर रहा है. तो अगर मैं ऐसा भी करूंगा ना तो इट्स अ सेम थिंग. मैंने 1 लगा दिया उसको और ये किया. तो क्योंकि ये क्या था, एरर था. तो एरर क्या है, 2 है. तो मैंने इसको 2 नहीं बोला, तो इसलिए इसने 2 को रीडायरेक्ट नहीं किया. आई कैन से 2 हियर
और वो क्या कर देगा, उसको 2 को वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब मुझे एरर स्क्रीन पे नहीं दिखा, विच मीन्स एरर कहाँ चले गया, फाइल में चले गया। अगर अब ये आउटपुट आएगा, अभी एलएस जो मैंने ऊपर किया था, सी यहाँ पर कैच करके दिखा देता हूँ, फाइल पहले जो स्क्रीन पे आ रहा था वो वहां चले गया, राइट। तो ये फाइल में क्या है, यहाँ पर सिर्फ अब ये एरर मैसेज चले गया। अब मैं अगर इसको नॉर्मल मतलब वैलिड कमांड के साथ यूज करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 को रिडायरेक्ट करना है, 1 को नहीं करना है। 1 इज माई आउटपुट, राइट। तो एलएस का आउटपुट क्या है, पूरे फाइल की लिस्टिंग आने वाली है। तो ये करूँगा तो उसने रिडायरेक्ट नहीं किया, उसने कहाँ पे थ्रो कर दिया, शेल पे मुझे पूरा दिखा दिया। उसने फाइल में रिडायरेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने उसको 2 बोला था। तो मैंने उसको बोला था सिर्फ एरर को ही रिडायरेक्ट कर, आउटपुट को रिडायरेक्ट मत करना। तो ये रिडायरेक्शंस है। एंड तो क्या क्वेश्चन था रिडायरेक्शन में? क्वेश्चन वाज, ये क्वेश्चन था कि सिंगल एरो विल रिप्लेस, जो भी टेक्स्ट वो रिप्लेस होगा, राइट? सपोज अच्छा, फाइल का पूछ रहे थे, राइट। हाँ, हाँ, फाइल का। तो आई वाज सेइंग कि हाँ, कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं ना हम लोग, उसके ऊपर है। तो अगर हम लोग एको कर रहे हैं तो एको में टेक्स्ट रहेगा, और आउटपुट है, मतलब दैट्स ओके। माय पॉइंट, आई फॉरगॉट, आई गॉट लिटिल कैरिड अवे। तो कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं ना हम लोग, उसके ऊपर। मैं यहाँ पे फाइल है मेरे पास में, वैसे ls undo cat file 01. Okay, this is empty, but I think we had some content. तो ये फाइल में क्या, तो कंसेप्चुअली समझो इसको। ls में क्या हो रहा था, जो स्क्रीन पे आ रहा था उसको मैंने फाइल में भेज दिया बाय सेइंग 1 2 फाइल डिस्क्रिप्टर स्पेसिफाई करके। मैं अगर फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 1 को भेजेगा वहां पर। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट का कंटेंट। शेल पे जो भी आ रहा है ना, तो शेल पे इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन शेल इट विल गो इनसाइड सम फाइल। तो ये कैट कमांड पीपल यूज टू एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में डालने के लिए करते हैं। लेकिन अगर यू गो बैक टू कंसेप्ट, the concept is anything that will be printed on your shell, instead we will print that inside a file. तो अगर मैं इस फाइल में डालना है, तो कंसेप्ट जो एलएस से कर रहा था मैं, सेम कंसेप्ट है। क्योंकि एलएस ने क्या किया, शेल पे मुझे आउटपुट दिया, कैट ने क्या किया, शेल पे मुझे आउटपुट दिया। तो ये आउटपुट को मैं रिडायरेक्ट कर सकता हूँ फाइल के अंदर में। एको क्या कर रहा है, एको भी मैं बोलता हूँ मैसेज, तो ये भी मुझे शेल पे दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ शेल पे मत दे, मुझे फाइल के अंदर डाल दे इसको। अब मैं फाइल के अंदर जब मैं इसको डाल रहा हूँ, तो वेदर आई वांट टू, मुझे पुराना रख के नया अपेंड करना है या पुराना को इससे ओवरराइट करना है। तो ओवरराइट करना होगा तो दैट्स अ सिंगल एरो, कि मैं ये कर दूंगा। अगर मुझे अपेंड करना है तो इट्स अ डबल एरो, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो इट्स अबाउट व्हाट कमांड, इट्स अबाउट आउटपुट। आई मीन इट्स नॉट अबाउट कमांड। तो कंसेप्चुअली क्या है कि जो भी शेल पे आएगा आउटपुट, वो तुम्हारे फाइल में जाएगा। क्लियर? एनी मोर डाउट, या फिर और दूसरे एग्जांपल से समझाऊं? थोड़ा समझा दो ना शहजाद, इफ विद न्यू एग्जांपल। कंसेप्चुअली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो कैट कमांड है, मतलब तुमने देखा होगा, यू माइट हैव सीन पीपल आर यूजिंग दिस, राइट। तो अगर मैं व्हाट यू आर सेइंग के रीडायरेक्ट से मैं एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में डाल सकता हूँ, राइट। राइट। तो अगर मैं आई कैन डू दैट, मैं ये कर रहा हूँ और रीडायरेक्ट किया मैंने, तो अभी ये क्या क्या कर देगा, इसके दोनों का कंटेंट देख लेते हैं पहले। कैट फाइल 04 को, इसमें प्रिंट दिस मैसेज है, और 03 में देखेंगे हम लोग, तो दिस इज माय फाइल, दिस इज माय फाइल लाइन 2। और अगर मैं ये सिंगल एरो करूंगा अभी, तो वो क्या करेगा, इसको ये फाइल जो फाइल 04 है विल सी। ठीक है, तो फिर से मैं करता हूँ। अब फाइल 04 में पहले क्या कंटेंट था, ये था। तो उसने क्या किया, जो इसका जो भी कंटेंट था उसके अंदर में ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट डिड। तो बोल रहा हूँ कि कंसेप्चुअली क्या है कि ई कमांड दैट आई यूज, मैं एलएस कमांड यूज कर रहा हूँ, इसने आउटपुट दिया। कैट कमांड में यूज कर रहा हूँ, इसने भी आउटपुट दिया। और कोई सा भी कमांड, दूसरा कौन सा, हमने एको कमांड यूज किया, राइट, उसने भी मुझे आउटपुट दिया। तो जो आउटपुट शेल पे आ रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस आउटपुट इज कमिंग ऑन शेल, मैं उसको एक फाइल में डाल सकता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। तो मैं उसको इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस ऑन द शेल, मैं उसको फाइल में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ना दूसरा मेरा ये है कि क्या करना है, मुझे ओवरराइट करना है। अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओवरराइट करना है या उसको अपेंड करना है। तो ये एक आउटपुट ऐसा था। दूसरा मैं
भी आउटपुट ले सकता हूँ, तो ये भी मैं पूरा फाइल में डाल सकता हूँ, और पीपल विल डू दैट, यू विल सी। हम लोग जब कुछ डिलीट करते हैं तो वी ऑलवेज टेक एक मतलब बैकअप के तौर पे कि उस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल थी, मतलब जस्ट हायरार्की, कंटेंट नहीं भी तो कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम विल सी के हायरार्की ऐसी रहती है। तो कंसेप्चुअली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो शेल पे आ रहा है वो फाइल में जाना, फाइल में रिडायरेक्ट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस ऑन द शेल हम लोग फाइल में डाल रहे हैं। तो अभी इफ यू वांट टू कॉन्कैट टू फाइल्स, मतलब कैट कमांड का जो कैट कमांड स्टैंड्स फॉर कॉन्कैटनेट व्हिच मींस मर्जिंग, तो कैट कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ये कैट कमांड क्या करता है, शेल पे प्रिंट कर रहा था, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं फाइल में प्रिंट कर दें, तो उसको रिडायरेक्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि इस फाइल में डाल दे उसको। तो कंसेप्चुअली समझना है तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग कंटेंट ऑन शेल, डजंट मैटर व्हिच कमांड इट इज, वो तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, फाइल में जाएगा। तो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, राइट। एलएस ने क्या किया, उसका आउटपुट शेल पे दिखा है, कैट ने क्या किया, फाइल का कंटेंट शेल पे दिखा दिया। ये एलएस भी क्या, जो आर्गुमेंट के साथ में पास कर रहा हूँ, तो वो भी उसने क्या किया, पूरा शेल पे दिखा दिया। तो ये इंस्टेड ऑफ शेल पे दिखाने की बजाय अगर मैं एरो कर दूंगा तो वो एरो में चले जाएगा। अगर मैं डबल एरो करता हूँ इसके अंदर में से, एंड इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर से इसको कैट करता हूँ 0, तो ये पहले वाला कंटेंट जो मैंने अब सिंगल एरो से किया था, और बाद में मैंने ये जो कंटेंट है बाकी का ये डबल एरो से किया। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन उसने फाइल में प्रिंट कर दिया। So दैट इज directly the data is moved to the file इसके राइट। अंदर हाँ, तो with the वही append one. कैट क्या कर रहा है, अगर तुम रीडायरेक्ट हटा दोगे कैट को तो वो तुम्हारी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता पूरी फाइल। Right. बोल रहे हो कि Okay. मेरी स्क्रीन पे प्रिंट मत करो, फाइल में जाके प्रिंट कर दो, और उसको सिर्फ बता देते हैं कि फाइल में अगर फाइल है तो तुमको क्या करना है, रिप्लेस करना है या अपेंड करना है उसको नीचे से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको अपेंड करके बताया। तो इट्स अबाउट आउटपुट बेसिकली, तो इसलिए मैंने फाइल डिस्क्रिप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। मतलब दिस इज समथिंग वी विल सी लेटर, बट ये एकदम बेसिक्स है व्हिच एवरीवन शुड नो कि 0 इज इनपुट, 1 इज आउटपुट, 2 इज एरर। और एक रिप्लेसमेंट में वो बता भी दिया आई थिंक, which was outside of the question, लेकिन वो हम लोग देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ नंबर, तो 1 नंबर डालता है उसके अंदर, 1 इज योर आउटपुट। that was my point। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है लिनक्स कर रहा है, लाइक मैं इसको एलएस नहीं दे रहा हूँ तो उसने क्या किया, मेरा पीडब्ल्यूडी हमेशा ले रहा है। तो एलएस को जब भी कोई फाइल नहीं देता हूँ तो वो हमेशा पीडब्ल्यूडी लेता है। तो मेरा पीडब्ल्यूडी ये है, और अगर मैं एलएस ये करूँ, स्क्रीन क्लीन कर देता हूँ और मैं जस्ट एलएस करूँ, दोनों ने आउटपुट सेम दिया मुझे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू फाइल। तो वी में थे हम लोग, लेट मी वी फाइल 01 में जाता हूँ इस बार, ठीक है। इट्स एम्प्टी फाइल एंड लाइक आई सेड इसमें 2 मोड रहते हैं, एस्केप मोड है, एडिटर मोड है। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, एस्केप मोड। एस्केप मोड में वी कैन रन कमांड्स, कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ पे हम लोग कमांड रन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं, बस राइट, सिंपल बोल ही रहा है, एडिट फाइल, ठीक है। तो अभी मैं एस्केप मोड में हूँ, तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर सकता हूँ। तो वी के भी कमांड्स है, जैसा हमने शेल के कमांड्स देखे वैसे वी के कमांड्स है। और वी का कमांड रन करने के लिए मतलब यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड लाइक कंट्रोल एस, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, ये सारे भी हैं। एंड देन यू हैव वी के प्रॉम्प्ट पे भी कमांड्स है, राइट। तो कमांड्स में भी यू हैव कंट्रोल दिस कॉम्बिनेशन वाले की कॉम्बिनेशन कमांड्स है। और देन यू हैव वी का शेल है, तो वी का शेल लाने के लिए तुमको कोलन प्रेस करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो यू ऑलवेज हैव टू प्रेस कोलन। तो अभी जो मेरा मोड है दैट इज एस्केप मोड बाय डिफॉल्ट है, राइट, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया ना। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा मोड है दैट इज एस्केप मोड। अगर मैं इसको एडिटर मोड में जाना चाहता हूँ तो ऑल आई हैव टू प्रेस सिंपली, सो दिस इज नाउ वन ऑफ द कमांड। तो एडिटर मोड में आने के लिए स्विचिंग बिटवीन दिस मोड आई हैव टू प्रेस आई प्रेस करूंगा तो किस में चले जाएगा, एडिटर मोड में आएगा। और एडिटर मोड से मुझे फिर से एस्केप मोड में जाना है, तो मुझे कौन सा बटन प्रेस करना है, एस्केप की जो है वो प्रेस करना है, इसी जो हर किसी का रहता है, ठीक है।
तो आई प्रेस करूंगा, एडिटर में आ जाऊंगा, एडिटर से एस्केप में जाने के लिए। तो ये एकदम कॉमन चीज याद रखनी है कि ये दो चीज में। और लोग क्या होता है कि वीआई में चले जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। एंड आई थिंक यू गाइस आल्सो एक्सपीरियंस दैट, लाइक एवरीवन आई वर्क, जिसको भी मतलब बताता हूँ मैं, तो पीपल हैव सीन दैट। और देयर वाज टाइम मैं भी वैसे ही एक बार फंस गया था। तो लॉट ऑफ पीपल विल रन इनटू दिस इशू के वो फाइल में चले जाते हैं लेकिन वहां पे आते नहीं है। तो और इसमें बहुत सारे विजुअल मोड्स वगैरह है। तो अगेन यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ की। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की में क्या था, यू जस्ट हैव टू प्रेस आई। तुमने आई प्रेस किया, एस्केप प्रेस किया, तो दिस इज टू स्विच बिटवीन द मोड्स। तो अगर मैं यहाँ पर आई प्रेस करूंगा तो यू सी अब ये इंसर्ट बन गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन की, मान लो कि मुझे शिफ्ट जी यूज करना है, तो मैं टाइप करूंगा तो कैपिटल जी टाइप हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द प्लेस वेर यू कैन नॉट टाइप द कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड। तुम यहाँ पे अब कुछ भी ये नहीं कर सकते। और दूसरा जो स्केप मोड में लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड था, अगर मैं शिफ्ट जी करता यहाँ पर, तो शिफ्ट प्लस जी, तो वो कुछ करता था। वो क्या करता था, मुझे एंड ऑफ फाइल में पहुंचा देता था मुझे। तो ये जस्ट एंड ऑफ फाइल में लेके जाता था मुझे। ये हम लोग बाद में देखेंगे कॉम्बिनेशन जो कॉमन, जो विच यू शुड नो, राइट। मैं चिट शीट भी शेयर कर रहा हूँ फॉर एवरीवन। और कोलन क्या करता है, जो वीआई के कमांड, वीआई के जो शेल वाले कमांड्स है वो हमको दे देता है कोलन। लेकिन अब मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में मैं कोलन प्रेस करूँ, शिफ्ट जी प्रेस करूँ, तो क्या हो रहा है, टाइप हो जाता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंसर्ट। तो क्योंकि उसको कब पता चलना चाहिए कि व्हाट आर यू मीन। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा टाइप करूंगा तो वो क्या हो रहा है कि टाइप हो जा रहा है। एडिटर मोड में वैसे ही होगा। तो मुझे अगर कमांड चलाने हैं वीआई के शेल वाले या की कॉम्बिनेशन वाले, आई हैव टू सिंपली प्रेस एस्केप टू गो इनटू एस्केप मोड। तो मैंने एस्केप प्रेस किया तो देखो नीचे से इंसर्ट हट गया। और सब में बेसिक कमांड जो इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे कमांड चलेंगे। और सब में पहला जो हम लोग टू सेव अ फाइल हम लोग बोलेंगे राइट। इसका मतलब है सेव फाइल, ठीक है। क्यू करना है तो इसका मतलब क्विट, तो इसका मतलब एग्जिट द फाइल। अगर तुमको सेव एंड क्विट करना है तो यू कैन डब्ल्यू क्यू, और उसके बाद यू कैन राइट एंड क्विट। इसका मतलब होता है, ये कॉमनली यूज होता है। और अगर कहीं कहीं पे ऐसा है कि तुमको सेव अपना जो तुमने सेव किया है फाइल, विच यू डोंट वांट टू, हमने जो फाइल में कंटेंट, लाइक मैंने जी जी कोलन लिखा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जिट करना है, राइट, मुझे डिस्कार्ड करना है। तो आई कैन सिंपली, अगर मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर हूँ, राइट, अब मुझे क्या करना है, एस्केप मोड में हूँ, तो आई कैन प्रेस, अगर मुझे की कॉम्बिनेशन चलाना है तो आई कैन प्रेस कॉम्बिनेशन उस की जो मुझे पता होनी चाहिए। या फिर मैं अगर मुझे कमांड रन करना है तो आई नीड टू नो द कमांड। तो कमांड मोड में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोलन प्रेस करना पड़ेगा। जो कि एस्केप मोड में क्या है, शिफ्ट अगेन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की, राइट। सो इट्स अ शिफ्ट एंड जो तुम्हारे कीबोर्ड पे रहता है, शिफ्ट प्लस वो जो एक बटन रहता है जिसमें ये और ये दोनों रहता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ये एक बटन जो है, ऐसा वाला जो बटन रहता है, तो ये इसके साथ में ये प्रेस करूंगा तो ये आ जाए। बिकॉज व्हाट आई एक्चुअली वांट, बिकॉज एक की एक कमांड, एक बटन है जिसमें ये दो है, तो हमको ये तो बहुत बेसिक्स है, एवरीवन शुड नो, राइट। अगर मुझे नंबर है और मुझे उसका एक्सक्लेमेशन साइन प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँ। हाँ असलम, क्वेश्चन है वापस। I have a question. Uh, in order to save this file, जैसे insert mode में हम लोग चले जाते हैं, so we can make the changes in the file and we need to press escape, then only we can save it, right? यस यस राइट। तो वही तो, क्योंकि सेव करने के लिए यहाँ पे डब्ल्यू क्यू करना है, तो यू जस्ट हैव टू सी दिस पिक्चर कि मैं इंसर्ट मोड में मैंने फाइल एडिट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सेव करना है फाइल को, तो डब्ल्यू है, तो वो कहाँ पे आएगा, एस्केप मोड में आना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद में ये की प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कोलन आएगा, उसके बाद में क्यू प्रेस करूंगा, एंटर मारूंगा, दैट्स द वे आई डू इट, राइट। तो ये तुम्हारा, ये हमेशा ही पिक्चर को याद रखना जब भी काम कर रहे हो तो, एंड दिस विल सॉल्व एवरी, मतलब ये पूरा सॉल्व कर देगा तुम्हारा। इसमें कुछ जो सारे हैं अभी कॉम्बिनेशन की में अगर तुम कुछ प्रेस कर दोगे तो फ्यू मोर थिंग्स विल पॉप अप, बट वो ओनली स्केप मोड में ही आएगा। और लोग क्या करते हैं कि घाई गड़बड़ में फाइल में घुसते हैं और कॉम्बिनेशन की प्रेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है वो, ये मतलब तुम शिफ्ट वी प्रेस कर देते हो जो कि पेस्ट करने के लिए है, और हर कोई उसी में फंसता है। सब कोई शिफ्ट वी प्रेस कर देते हैं, उसके अंदर में विजुअल मोड में चले जाते हैं हम लोग। तो
bring this down. This is for everyone. क्योंकि तुम लोग सब फंसोगे उसके अंदर में, एंड दैट आई एम श्योर दैट हैव एवरी न्यूबी और एवरी नूब्स लिनक्स में जिसको बोला जाता है, जिसको नूब जो नया रहता है, तो हर किसी को हो जाता है। तो इसके अंदर में जो एक कमांड है जो एवरीवन विल गेट स्टक इन, कॉम्बिनेशन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल का कॉपी करते हैं, और क्योंकि हमारे मसल मेमोरीज को पता है राइट नाउ, जो हमारी मसल्स है उसकी भी मेमोरी रहती है, और वो मेमोरी क्योंकि सब कुछ वक्त पे होता है ना कि ऐसा तुमको बोलते कुछ बताओ तो तुम बोलते अरे मुझे तो मेरे हाथों से मैं कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रही, लाइक स्पेलिंग रहता है कीबोर्ड पे हम लोग टाइप कर देते हैं लेकिन पता नहीं रहता, कुछ चीजें रहते हैं जो करते रहते हैं, तो हमारी मसल मेमोरी में वो रजिस्टर रहता है। तो जो शिफ्ट वी है, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द विंडोज वर्ल्ड, तो लोग क्या करते हैं सीधा शिफ्ट पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस वी, सॉरी कंट्रोल वी कर देते हैं, नॉट शिफ्ट वी, कंट्रोल वी कर देते हैं हम लोग। तो कंट्रोल वी जो है ये क्या करेगा, एक विजुअल मोड में लेके चले आता है। तो लिनक्स में विजुअल मोड एक रहता है, तो वो उसमें लेके चले आएगा तुमको। तो जस्ट हैव टू बी माइंडफुल कि तुमको पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, पेस्ट करने का भी एक कमांड है, मतलब यू कैन डू द पेस्ट एज वेल, लेकिन वो लिनक्स के विजुअल मोड से पेस्ट लिनक्स के वे में कॉपी हुआ होगा ना तो ही, अगर सेलेक्ट करके कॉपी किया है ना तो नहीं, क्योंकि लिनक्स का कॉपी अलग रहता है, और एडिट मोड में सॉरी नॉट लिनक्स, द वीआई का जो कॉपी है दैट इज डिफरेंट, और एडिट मोड में जो कॉपी होता है जो हमारा ट्रेडिशनल वे में जो हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, राइट। और क्वेश्चन है असलम? और सर फोर्सफुल एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सपोज वी आर स्टक इन वी। हाँ बता रहा हूँ ना, वो तो दैट वाज आई वाज कमिंग टू। तो ये फोर्सफुल एग्जिट राइट, डिस्कार्ड करना, मैंने चेंजेस मुझे डिस्कार्ड करना, मैंने चेंज किया है लेकिन आई डोंट वांट टू सेव, तो आई कैन सिंपली नेगेशन जो है तो डिस्कार्ड चेंजेस, ठीक है। मुझे कुछ भी ये नहीं करना है, मतलब मुझे कुछ सेव नहीं करना जो मैंने चेंजेस किया था, क्योंकि W क्या करेगा, सेव कर देगा, लेकिन तुम VI फाइल में ही रहोगे, तुम बाहर नहीं आओगे, तुमको बाहर आने के लिए फिर Q प्रेस करना पड़ेगा। तो ये सब कब होगा, एंटर देना पड़ता है बाय द वे हर चीज के लिए, विच वी विल से। अगर तुमको ओवरराइट करना है, कोई रीड ओनली फाइल है तो फोर्सफुली सेव एंड क्विट करना है, तो दिस इज द वेरी कॉमन, फोर्सफुली सेव एंड क्विट, और राइट एंड क्विट बोला जाता है इसमें। तो ये तुम्हारे कुछ कॉमन्स रहेंगे फाइल से काम करने के लिए, दैट्स इट, आई मीन दैट्स ऑल यू शुड नो। इंसर्ट मोड में आओ, लिखो, एस्केप मोड में जाओ, ये कमांड इसमें आ जाओ, शेल में, लिनक्स वी आई के इसके अंदर में, और उसके शिफ्ट ये प्रेस करके आना है तुमको, और ये सारे तुम्हारे कमांड है बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू राइटिंग देन प्रेस W। तुमको अगर सेव करके बाद में क्विट करना है तो W करके ये कर दो, विच नोबडी डज दैट बट यू कैन डू दैट टेक्निकली, इट्स पॉसिबल, लेकिन ज्यादातर लोग सीधा ये कर लेते हैं, सेव एंड क्विट करना है तो। अगर तुमको सेव करके कंटिन्यू करना है तो ये यू कैन डू दैट, बट Q ऑल्सो वर्क्स। अगर तुमको डिस्कार्ड करना है अपना चेंजेस, यू डू दिस। अगर तुमको सेव क्विट करना है नॉर्मल विदाउट फोर्स, तो यू कैन डू दैट। अगर तुम कुछ रीड ओनली, ये ज्यादातर किसमें होगा, रीड ओनली फाइल रहेगी, तो रीड ओनली फाइल का मतलब है कि उसको सिर्फ रीड किया जाता है, लेकिन तुम फोर्सफुली उसके अंदर लिख रहे हो, तो तुम कुछ रीड ओनली कर रहे हो, ओवरराइट कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो पूछता है, मतलब उस टाइम पे यू कैन यूज WQ, ठीक है। तो दिस इज, ये पिक्चर को बस सामने रखना है तुमने, जिसमें तुम्हारा जब जैसे आओगे तो एस्केप मोड में रहोगे, आई प्रेस किया, एडिट मोड में आया, फाइल को एडिट किया, फिर एस्केप मोड में आया, शिफ्ट ये कोलन कमांड प्रेस किया, और WQ किया, द मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज हम लोग द ओनली टाइम वी विल डू व्हेन वी आर डन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, मैं मेरे चेंजेस को डिस्कार्ड करना है मुझे, तो शिफ्ट कोलन प्रेस किया मैंने, देखो मैं यहाँ पर आ गया कमांड मोड में, और मैं Q प्रेस कर दूंगा और एंटर करूंगा तो नहीं करने देगा, बिकॉज वो बोल रहा है कि तुमने वो बोलेगा अभी नो राइट सिंस लास्ट चेंज एड, उसने बोला है कि जो ये किया है तुमने, मतलब राइट कर रखा है, तुमको अगर फोर्सफुली निकलना है तो एक्सक्लेमेशन ऐड करो, और वो राइट करने के लिए तो मैं फिर से इसके कोलन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट कोलन, इसमें आ गया मैं यहाँ पर Q प्रेस किया, एक्सक्लेमेशन विच इज शिफ्ट 1 एंड एंटर। तो अभी जो मैंने फाइल बाहर आ गया, मैं शेल पर आ गया, VI से मैं बाहर आ गया, फिर से मैं फाइल में जाऊंगा तो नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा जो सेव है वो चेंज ही नहीं किया था,
इफ आई वांट टू नाउ अगेन डू द मैं सेव करना चाहता हूँ, तो स्केप मोड में आई प्रेस करूंगा, एडिटर मोड में आ जाऊंगा, लेट्स प्रेस आई एंड लिखते हैं कुछ तो यहाँ पे राइटिंग फाइल कंटेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने फाइल को एडिट कर दिया, आई एम डन विथ माय वर्क। नाउ आई नीड टू प्रेस एस्केप टू गेट इनटू एस्केप मोड अगेन। तो मैं एस्केप प्रेस किया, यहाँ पे नीचे देखना हमेशा इंसर्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। एस्केप मोड के बाद में मुझे क्या करना है, सेव एंड क्विट करना है। तो आई विल गो फॉर दिस गाय, या फिर मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आई एम नॉट ओवरराइटिंग एनीथिंग, और ना ही मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, ना ही मैं रीड ओनली फाइल में लिख रहा हूँ। आई कैन सिंपली डू WQ, मैं कोलन प्रेस करूंगा, राइट, फिर से मैं कमांड मोड में आ गया, वी के WQ, ठीक है, फाइल लिखा गई। अब मैं फाइल के कंटेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो हमको पता है कैट कमांड कर देता, मैं कैट से ये करूंगा 01, तो आ गया, ये फाइल मैंने लिखा था उसके अंदर में। अब वो रिडायरेक्ट करके मैं इसके अंदर और भी अपेंड कर सकता हूँ, शेली वे से, या मुझे फाइल के अंदर जाके करना है, तो दैट इज आल्सो समथिंग आई कैन डू, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। नेविगेशन के बाद में एडिटिंग, दिस इज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड देन मूविंग फाइल्स, वो विच वी विल सी टुमारो, बट ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन, एडिटिंग फाइल एंड मूविंग फाइल। नेक्स्ट में बहुत बेसिक काम ही रहेगा हमारा, अनलेस यू आर मतलब ट्रबल, कुछ भी काम करोगे तो यू नीड अ एप्लीकेशन स्पेसिफिक नॉलेज, एंड देन नेविगेशन, एडिटिंग फाइल, मूविंग फाइल, टार वार करना, कुछ ऐसा हाउसकीपिंग जो वर्क रहते हैं, दैट वी विल सी के एक नॉर्मल, regardless of what application you are working on, whether you are working with a database or you are working with some web server और कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स जो कि कॉमन रहेगी, एंड जिसको हाउसकीपिंग बोला जाता है। तो हाउसकीपिंग का ऐसा रहता है कि कॉमन चीजें रहती है, हर घर में किचन रहेगा, स्टोव रहेगा, मतलब गैस रहेगा, बर्तन रहेंगे, तो वो चीजें वैसी इसमें भी उस तरीके की चीजें कॉमन रहेगी। And then you'll have a lot of application specific things जो कि we'll see that later in more detail. लेकिन अभी now everyone should be very well versed with this VR. So that's the reason why I don't like to introduce Nano for people to get into the comfort zone और उसके बाद में become very difficult. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे muscle memory में और तुम्हारे conscience में VR register हो जाए, and because you have to work with the VR. तुमको प्रोडक्शन में कंपनी में जाना है, तो यू शुड नॉट वर्क विद द नैनो, मतलब नैनो रहेगा ही नहीं, रेड हैट पे नैनो बाय डिफॉल्ट रहता ही नहीं है, और 90% चांसेस आर देयर कोई भी कंपनी में जाओ वो लोग रेड हैट यूज करेंगे, अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन। तो वो गरीब लोग रहते हैं, लाइसेंस पैसा नहीं दे पाते, तो ओपन सोर्स मतलब जो है वो डेबियन यहाँ के जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वाले उठा लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो यहाँ जाओगे, एंड वी हैव सीन व्हाई सपोर्ट, राइट, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो नैनो तो रहेगा ही नहीं वहां पे, तो तुम क्या यूज करोगे। तो ये तो स्टार्ट करना ही है कभी ना कभी, तो अभी से ही, राइट। अगर कोई प्रैक्टिस भी कर रहा है नैनो से कर रहा होगा, तो उसको छोड़ो और वीआई से स्टार्ट करो, और ये पिक्चर को दिमाग में रखो, बस तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल डू इज दिस, अगर ये भी होता है तो लेट मी डू दैट मिस्टेक, राइट। कंट्रोल वी प्रेस किया, अभी इसके अंदर में जो है ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये कंटेनर के अंदर में ये काम कर रहा हूँ, तो इसमें एक्चुअली हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे नीचे चेंज करके बताया नहीं है, मतलब ये कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा ये क्लाउड शेल में ये कंटेनर में चल रहा है ना, इसलिए इशू है। लेकिन कुछ भी रहेगा ना, कोई सी भी मोड में हो तुम, डबल एस्केप प्रेस करो, यू विल कम बैक टू एस्केप मोड, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू दैट। अगर नहीं हो रहा है ना, सिंपल क्या करो, उसको कट ही कर दो, मतलब दैट इज द लास्ट ऑप्शन, राइट। लेकिन तुम किसी भी मोड में रहोगे, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस डबल एस्केप, तुम हमेशा एस्केप मोड में आ जाओगे। मतलब अगर तुम विजुअल मोड में भी हो, इफ यू वांट टू कम बैक टू दिस अगेन, तो इसमें आ सकते हो, तुमको डबल एस्केप प्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल वी ही वाली गलती हर कोई करता है, एंड इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट जो हम लोग विंडोज वाले हैं, मैक वाले हैं, हमको आदत रहती है कंट्रोल वी से पेस्ट करने की, कंट्रोल एस से ये करने की। तो कंट्रोल वी शिफ्ट वी, ये शिफ्ट वी भी रहता है, जो कि अगेन विजुअल मोड का ही एक पार्ट है, देयर इज अ डिफरेंट वे। तो उसके अंदर में घुस जाते हैं, और फिर वहां से लोग फिर वहां से ये करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू, रिलैक्स रहना है, और ये पिक्चर को सामने रख देना है हर बार। तुम अगर विजुअल मोड में हो तो डबल एस्केप प्रेस करो, फिर कम इनटू एस्केप मोड, और नीचे तुमको हमेशा बताते रहेगा यहाँ पर तुम कहाँ पर।
और उसके बाद में क्यू प्रेस करूँ तो आ जाता है। ठीक है, तो बाहर इस तरह से निकलना है। अगर फोर्सफुली बाहर आना है, कुछ चेंजेस किया है तो ये बिना सेव किए, सेव करके फोर्सफुली बाहर आना है तो ये। ठीक है, ये सारे कॉमन चीजें। ठीक है, आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन है इस पे, वीआई पे, फाइल एडिटर पे। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, एकदम बेयर मिनिमम बेसिक फाउंडेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू मास्टर। हाँ, यस असलम। Shehzad, one last question for VI is like, अभी आपने VI command दिया और file name दिया, right? So instead of giving a file name initially, we can give it later also, right? सिर्फ VI command type कर दिया मैंने, हाँ हाँ, मैंने राइट। तो वो initialize हमने कर देखा दिया। था ना मैन में इफ आई डू राइट, वो एम्प्टी फाइल ओपन कर देगा वो, जो कि मैं उसको बता सकता हूँ मुझे कहाँ पे सेव करना है। तो दैट आल्सो वी कैन डू। बट जनरली वैसा नहीं किया जाता है। ज्यादातर विल सी के हम लोग हमेशा एक फाइल का नाम दे देते हैं, मतलब दैट इज आल्सो अ वे। तो जब हमने मैन वीआई किया था तो वी हैव सीन के वो दोनों के लिए उसने क्या कर रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑप्शनल। Option. राइट, तो वीआई के जो ऑप्शन है दैट इज आल्सो ऑप्शनल, और फाइल स्पेसिफाई करना है कि नहीं दैट इज आल्सो ऑप्शनल। लाइक हमने मेकडर में देखा था, यहाँ पे मैन मेकडर करता हूँ मैं एमकेडीआर। तो इसके अंदर में यूल सी डायरेक्टरी को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रैप किया है, राइट। इट्स नॉट रैप्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट, which means it's a mandatory, you have to pass. Without this makedir command will throw an error. ऑप्शन जो है मेकडर के हैं दैट इज ऑप्शनल, लेकिन डायरेक्टरी इज कंपलसरी, इट्स रिक्वायर्ड। तो दैट इज द थिंग। तो वीआई में भी तुम फाइल नहीं दोगे, तुम लिख लो। लाइक नोटपैड ओपन करते हैं हम लोग, राइट, सेव नहीं करते हम लोग, एम्प्टी नोटपैड ओपन कर देते हैं, अनटाइटल बोलता है, राइट। विंडोज पे हम लोग ओपन करते हैं तो उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं उसको, कहीं पे भी हमको जहां दिल करे वहां सेव कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट। Okay. लेकिन ज्यादातर पीपल क्या करते हैं, हम लोग मतलब दैट इज एकदम वेरी बेसिक्स है, तो मैं तो बोलूंगा वैसा करो भी मत। सीधा फाइल का नाम स्पेसिफाई करो तुमको जहाँ पे फाइल सेव करनी है। वीआई बहुत एडवांस है, मतलब देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन वीआई, मतलब इट्स वेरी एडवांस ये फाइल एडिटर है, और इसलिए इसको ही यूज किया जाता है। और बहुत कुछ कर सकते हो तुम इसी के अंदर में, मतलब तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो वीआई के अंदर में बैठे बैठे। उसके अंदर वीआई के खुद की बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स ही हम लोग करेंगे टू गेट स्टार्टेड विद। और स्लोली 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 मतलब तुमको समझ में आ जाएगी चीजें, तो बाकी के देखेंगे। तो यस, वी कैन क्रिएट एम्प्टी फाइल एंड देन राइट कंटेंट एंड देन सेव इट समवेयर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन एल्स? वीआई ज्यादातर यूज होते हैं क्या? यस, अब वही तो बोल रहा था मैं, वीआई डिफॉल्ट रहता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वही यूज होता है। वीआई रेड हैट पे मतलब नैनो नहीं रहेगा, डेबियन वगैरह पे नैनो रहता है, लेकिन लाइक आई सेड 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और सर्वर्स दैट यू विल एनकाउंटर वो रेड हैट वाले सिस्टम रहेंगे, और उस पे तुमको मिलेगा नहीं। और नैनो एकदम बेसिक्स है, वो तुम्हारा जो नोटपैड है दैट इज इट्स फॉर एवरीवन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर हिम। सो वीआई ही हमको आना चाहिए, वीआई ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। और नैनो तो रहता ही नहीं, तो क्या करोगे, और तुम इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हमारा सर्वर है, वी हैव अ फ्री विल कि हम लोग जो चाहते हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं रहता, यू कैन नॉट इंस्टॉल एनीथिंग यू लाइक और यू वांट। जो वहाँ पे सर्टिफाइड टूल्स रहेंगे वही इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो मैं इस पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ऑफिस का रहेगा तो मैं जूम भी इंस्टॉल नहीं कर सकता उसके ऊपर, अनलेस ऑफिस वालों ने बोला कि हाँ ये सर्टिफाइड है, हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दे डोंट अलाउ। तो कभी कोई कंपनी में जाओगे तो कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो घर पे यूज करते हो वो मत डाल देना उसके अंदर, तो तुम्हारा जॉब खतरे में आएगा। मतलब सीधा स्कैन होता है, तुमको अलर्ट आएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें, मतलब यू कैन नॉट इंस्टॉल एनीथिंग यू लाइक और एनीथिंग यू विल पहले। और ये तो दैट्स अबाउट योर लैपटॉप, बट सर्वर पे तो इंटरनेट ही नहीं होता, तो तुम क्या इंस्टॉल करोगे। मतलब सर्वर, हमारे सर्वर पे भी इंटरनेट है, जो हम लोग और देखेंगे आगे क्लाउड में। बट ऑर्गेनाइजेशन में विल नॉट हैव दैट सिनेरियो, एंड वी विल आल्सो सी के उसका मतलब क्या किस तरीके से फिर रहता है वो चीजें। ठीक है, तो yes, VI is what everyone uses, and VI is what we should also know, or we will use.
Any other question? ठीक है, अगर नो क्वेश्चंस देन लेट्स रैप इट अप। आज थोड़ा मुझे काम था, दैट्स व्हाई वी कुडंट स्टार्ट ऑन द शेड्यूल टाइम, बट कल से हम लोग टाइम पे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल यूटिलाइज द 2 आवर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो ग्रुप पे पोस्ट करो, एंड द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग राइट दे विल स्टार्ट पोस्टिंग इट, दैट इज बाय नेचुरल। तो अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, मतलब बहुत सारे चीज लोग रहते हैं ना कि दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट, कह रहे मुझे आता है, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस दिस और प्रैक्टिस दैट। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट में कभी मत रहो। तुम कितने पानी में हो, मतलब 2 मिनट में तुम समझ जाओगे व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस। और चीजें बहुत टीडियस होंगी, लेकिन वही चीजें करने के बाद में तुम उसके मास्टर बनोगे। टीडियस मतलब जो थकाती रहती है, बोर कर देगी तुमको कि बार बार क्या करना, मुझे तो ये अच्छे से आता है। तुमको अच्छे से करने के लिए उसको 50-100 बार करना पड़ेगा अच्छी चीजें। आई मीन ये तो बहुत बेसिक्स है फॉर पीपल हु नो, जिसने लिनक्स पे काम कर लिया है उनके लिए नहीं है, बट जो नहीं कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाओ कि मैं बहुत भारी हूँ। अगर तुम भारी हो तो तुम फिर उतना, मतलब ये करके दिखाओ, मतलब प्रूफ करके दिखाओ बाय गेटिंग अ जॉब जो तुमको 1 लाख 2 लाख पे करे, तब तुम मतलब बहुत सर्टिफाइड हो सकते हो, देन वी विल स्टार्ट बिलीविंग। अनलेस जब तक कुछ नहीं किया है तो तुम सोचो ही मत। वो तुम सोचो कि मेरी औकात क्यों नहीं है 1 लाख रुपए कमाने की, मेरे पास तो एजुकेशन है उतना, तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मेरी औकात अभी तक नहीं है। तो अपनी औकात बनाओ पहले, और फिर उसके बाद में वो ओवर कॉन्फिडेंट और वो सारी चीजें लेकर आ जाओ कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं एकदम मास्टर हो गया हूँ इस चीज का, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ये बच्चे लोग के काम है, बच्चे लोग को सीखने में। तो पहले अपने आप को मतलब ये कर लो, प्रूफ कर लो, उसके बाद में मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में करना। अगर कुछ लोग को मतलब इन जनरल बता रहा हूँ, दैट इज वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। लोगों को आ जाता है, बोर होने लगता है तो लगता है मुझे आता है। तो उस तरीके से बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो जितने भी लोग हैं तुम देखोगे तो आइसबर्ग का एग्जांपल, कि टिप ऑफ आइसबर्ग एकदम छोटी सी रहती है और 95% पूरा नीचे रहता है, दैट इज योर वर्क और तुम्हारी मेहनत है। और व्हेन यू गेट अ जॉब और व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो लोगों को दिखता है उतना सा। फिर लोग तुमको बोलना चालू कर देते हैं, अरे लकी है, ये है वो। लकी कब बोलेंगे, जब उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा अचीव कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा अरे ये लकी है, बिकॉज वो नहीं करना चाहता मेहनत। वो बोलेगा ये लकी है, इसको सपोर्ट था, इसको ये था। तो वैसे मतलब चीजें बनाते हैं। तो यू मेक एक्सक्यूजेस और यू एम्ब्रेस और मूव ऑन, मतलब उनको चैलेंजेस को और सारी चीजों को गले लगाओ और आगे बढ़ो, तो तुमको चीजें मिलेंगी। ठीक है, ओके देन। कल से टाइम पे आने की कोशिश करो सब लोग। आई मोस्ट ऑफ देम वर ऑन टाइम, बट कुछ लोग नहीं आए, तो आई वुड encourage everyone to be on time. Show some seriousness, that way maybe I can also रिकॉर्डिंग किसके पास रहते हैं? क्या रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ये फॉर्म फिल करो ना रिकॉर्डिंग तुम। अभी का अभी। हाँ फॉर्म फिल कर दो, ग्रुप पे है और तुमको मिल जाएगा वहाँ से। जी ग्रुप पे पूछो ना ये सारे क्वेश्चन, चलेगा। मतलब अभी इतने दिन से बैठे थे तो ग्रुप पे पूछना था ना, तो आंसर करते थे ना तुमको। ओके। ठीक है, वैसे ग्रुप पे फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म पे सारे सबको ईमेल पे सबको भेज दिया जाता है। ठीक है, हमको अज़ूर डेवॉप्स से भी अकाउंट बनाना था, लेकिन वी आर ज्यादा टाइम यहाँ पर ले लेते हैं, तो देखते हैं। बिकॉज टास्क को ट्रैक करना चाहूंगा मैं, एंड अभी भी यहाँ पे मतलब हर एवरीडे आई सी न्यू फेसेस और न्यू नेम्स। तो कुछ कॉमन नेम है, कुछ लोग आते नहीं आते। तो ठीक है, हम लोग विल ओनली कंटिन्यू विद द पीपल हु आर रेगुलर हियर, एंड उन्हीं को टास्क भी बना के देंगे और उन्हीं का टास्क भी ट्रैक करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक Thank you, sir. यू।